Look at this question. ABCD is a rectangle with angle BAC is equal to 32 degree. Determine the angle DBC. So just find out the angle BAC. That means angle is formed at the point A. So point A is here, but the angle BAC, that means you have to join AC for making this angle. So let me join it. So angle BAC is equal to 32 degree. You have to find out the angle DBC. Angle DBC. DBC, for making angle DBC, again you have to join the diagonal DB. So angle DBC, this angle you have to find out. Let us consider both the diagonal intersect each other at point O. Before solving this question, you have to know about some property related to sides and an angle for a triangle. Just think about a triangle. When its two sides are equal. Suppose that we take a triangle PQR. Suppose that in this triangle PQ is equal to PR. Only two sides are equal in this triangle. So in the chapter of congruency you have already studied about it, but here we are going to read the property directly. So when in a triangle two sides are equal, that means the opposite angle of this side is, look at the opposite angle of the side PQ. Side PQ के opposite कौन सा angle आ रहा है? R. So this angle R and PR के opposite कौन सा angle आ रहा है? Angle Q. जिस साइड के सामने जो एंगल ट्रायंगल में आएगा वो उस साइड का अपोजिट एंगल कहलाएगा. तो PR का अपोजिट PQ का अपोजिट एंगल R है और साइड PR का अपोजिट एंगल Q है. यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिंस एंगल अपोजिट टू साइड PQ is equal to angle R and angle opposite to side PR is equal to angle Q. PQ के अपोजिट एंगल R है और PR के अपोजिट एंगल Q है. So just look at the property when two sides are equal. When PQ is equal to PR, when PQ is equal to PR, जब ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे. तो PQ का अपोजिट एंगल है R इक्वल टू PR का अपोजिट एंगल है Q. So in a triangle when two sides are equal then their opposite angles become automatically equal. इसे हम कहते हैं the angles opposite to equal sides are equal. इस प्रॉपर्टी को थ्योरम के रूप में पढ़ा जाता है जो 9th क्लास में हमें पढ़ना है. angles opposite to equal sides are equal in a triangle. ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल का है. मीन्स अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे. इस प्रॉपर्टी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे. So when you look at this triangle, when you look at this rectangle, then you can find that this angle is given 32 degree and this angle you have to find out. So how you find out the angle? So try to use the property of the diagonal for a rectangle. We know that the diagonals are equal
and also diagonals bisect each other. Since here we are going to write the property. So here we know that diagonals of a rectangle are equal and they bisect each other. मीन्स दोनों एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड करते हैं. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल में. तो सिंस AB AC, द फर्स्ट डायगोनल AC इज इक्वल टू द सेकंड डायगोनल BD, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. सिंस बोथ बाइसेक्ट ईच अदर, तो दोनों जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं दैट मीन्स दोनों का हाफ हाफ भी आपस में बराबर होगा. सो वी राइट हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD. So when the half of both the diagonals are equal, then we know that OA is half of AC. AC diagonal का आधा पार्ट हम OA को लेना चाह रहे हैं, तो half of AC is written as OA and half of BD हम OB को लेना चाह रहे हैं. OD का यहाँ कोई यूज नहीं है, इसीलिए BD के हाफ पार्ट के रूप में हम OB को लिखते हैं. Now look at these two sides. OA is equal to OB. When you look at OA is equal to OB, then you can find that OA is equal to OB are the two sides of the triangle OAB. अगर इससे हम थोड़ी देर के लिए इरेज करें, then look here, it is a triangle. AOB is a triangle, and in this triangle we have written OA is equal to OB. OA and OB are equal here, so we use the same notation. तो इस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे. सब सुविधा के लिए इस एंगल का नाम हम दे रहे हैं 1, इस एंगल का नाम देते हैं 2, और इस एंगल जो यहाँ बना हुआ था उसे नाम देते हैं 3. सो व्हेन OA इज इक्वल टू OB, तो OA का अपोजिट एंगल 2 है और OB का अपोजिट एंगल 1 है. तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाई OA का अपोजिट एंगल ट्रायंगल OAB में एंगल 2 है और OB का अपोजिट एंगल OB का अपोजिट एंगल इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल के अंदर ही देखना है, हमें बाहर नहीं देखना. तो हमने लिखा OA का अपोजिट एंगल 2 और OB का अपोजिट एंगल 1 है. सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1. तो एंगल 1 का वैल्यू कितना गिवन है, 32. सो एंगल 2 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 का एंगल 1 का वैल्यू यहाँ डाल दे रहे हैं 32. तो दोनों का मेजरमेंट हो गया 32. इसे हमने एंगल 1 नाम दिया है. ये कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया, इन ट्रायंगल AOB एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इस प्रॉपर्टी के द्वारा हमने एंगल 2 निकाला. अब एंगल 2 जब निकल गया है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल 3. ये एंगल जो निकालना है इसका नाम हमने क्या डाला है, इस एंगल का नाम हमने डाला है एंगल 3. तो एंगल 3 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन यू ज्वाइन दिस लाइन अगेन, देन वी हैव ए रेक्टेंगल, देन जस्ट लुक एट द फिगर. Now just look at the figure. You can find that angle 2 and angle 3 together make an angle B. ये दोनों मिलके कौन सा एंगल तैयार कर रहे हैं, एंगल B तैयार कर रहे हैं. और हम जानते हैं कि एवरी एंगल इज 90 डिग्री इन ए रेक्टेंगल. एंगल B का वैल्यू 90 डिग्री हो गया. दैट मीन्स एंगल 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 90 डिग्री के. तो जब एंगल 2 का वैल्यू 32 हमने निकाल लिया, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए 90 में से 32 घटा देंगे तो 3 का वैल्यू पता चल जाएगा. जस्ट ये है. Since here in rectangle angle B is equal to 90 degree
and this angle is made up of two angles, angle 2 and angle 3 is equal to 90 degree, and angle 2 we have find out as 32 degree. So put the value 32 degree plus angle 3 is equal to 90 degree. Now subtract 32, send 32 to the other side. So we get angle 3 is equal to 90 degree minus 32 degree. Now subtract it. So what you get? 8, 5, 58 degree. So angle 3 is measured as, just put here 8, 9, 58 degree. So and this angle 3 is, and this angle 3 is named as angle DBC. DBC. Angle 3 is named as DBC. So DBC is measured as 58 degree. ध्यान है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2, 3 ये सब एंगल्स के नाम है, ये डिजिट नहीं है। यहाँ पर हम लोग सुविधा के लिए 1, 2, 3 एंगल का नाम देते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रहा है तो सुविधा के लिए हम यहाँ पर x, y, z भी लिख सकते हैं, a, b, c भी लिख सकते हैं। जैसा आपको सुविधा हो वैसा हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर में यूज करेंगे अगर हम लोग लेटर लिख रहे हैं तो, और नहीं तो डिजिट का यूज करते हैं नाम लिखने के लिए, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को 3 लेटर में नाम लिखने में प्रॉब्लम होता है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है। इस कारण हम लोग स्मॉल सिंबल का यूज करते हुए डिजिट का प्रयोग करते हैं या स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। तब इस एंगल को हम डायरेक्टली या तो एंगल 1 बोलेंगे या तो डायरेक्टली एंगल स्मॉल a बोलेंगे। लेकिन अगर पूरा नाम लिखना है इस एंगल का, इस एंगल का पूरा नाम हो जाएगा BAC हो जाएगा, 3 लेटर।